the case summary of South China Sea dispute, which is popularly known as the dispute between Philippines and China, that is Philippines versus China. And along with this topic, we would also be discussing the very important topic from international law, that is law of the sea. Moving ahead, we have to first understand what has been the history and the origin of the law of the sea. So as we know that a huge chunk of the public international law So huge share of public international law is derived from, we have to understand that what is the origin of the public international law. So as we all know that with the passage of time and antiquity, the customs, they get the usage of a law. And similarly, the customary international law pertaining to the seas have also been incorporated in the international law. So in the General Assembly discussions of the United Nations, multiple conferences have taken place, amongst which the first 3 conferences were of prime importance. So the Conference 1 of United Nations General Assembly, it was held in 1957 and they adopted 4 conventions. Now the question is, why did they adopt these conventions? Why was the need of deliberation on this area? So we have to understand that during this period, the nations were balkanized because of the World War, and there was an increased effort from all the industrialized countries to look for resources outside their territorial domain. So the European nations and the America, they wanted to explore the resources in the maritime area. So the 4 conventions, after a lot of deliberations, these 4 conventions were adopted. The Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone, Convention on the High Sea, Convention on the Fishing and Conservation of Living Resources, and the Convention on the Continental Shelf. As we move forward in the discussion, we will understand the meaning of all these terms. After the first conference, the second conference was not that effective because there were differences in the claims of the state. Now, there were many states they wanted to have. Okay. So now there were many states they wanted to allow the other countries to explore in their maritime area. Now there were many countries they were very reluctant in getting these countries within their areas. So we have to also understand that when we talk about maritime zone, there are countries who have oceans and seas as their coastal areas. But there are certain states, they are landlocked. For example, Bhutan, Nepal, they are landlocked states. They do not have a direct access to seas or water bodies. So there were countries who already had their coastal areas, they were reluctant. So the second conference, it failed because there were differences in the claims. Now the third conference was very important because it adopted the principle of the common heritage of mankind. So what is this principle of common heritage? This principle basically states that the law of the sea it's of a customary nature, and every state has an equal right to access the maritime boundaries, to access the maritime areas. But with the passage of time, the limits had been placed.
Now, there was also the need to codify the existing customary rules, and because of that, they came up with a permanent solution. Now, what was the permanent solution? That we have to fix our maritime limits, we have to fix our territorial limits. Now, why do we need to fix it? So, as we all know, that when we talk about jurisdiction, the very important jurisdiction is the territorial jurisdiction. Now, territorial jurisdiction is important because every state can exercise its laws, it can exercise its police or the army, that is the security to these areas. So there was a need to fix the maritime territorial limit of the states. So there was one custom which was very popular, that was the cannon shot rule. Now, what is a cannon shot rule? You're firing a cannon from the boundary of a particular coastal state, and the state will see how far is the cannon going. So it was considered as 12 nautical miles. And we all know that this custom has been duly incorporated in the convention. Now, another very important area was the principle of freedom of the sea. Now, no country can prohibit another country from accessing, the sea. Why? Because there are many countries, they have to pass through the coastal area or the maritime area of another state. So the principle of the freedom of sea, even that became universally acceptable. So we came up by the 10th conference. So very important, by the 10th conference of the United Nations. Yes. The cannon shot rule. Now, what is the cannon shot rule? Basically, they would be, positioning a cannon. Cannon का मतलब तोप, आप एक तोप के तरीके से समझिए कि हमने बाउंड्री पे एक तोप रखा है, ठीक है? So we have the coastal boundary of one state. हमने वहां पे एक तोप रखा है, and we are firing. So we are firing towards the sea. Okay? तो हम सी की तरफ फायर कर रहे हैं. So it will go like this, like a projectile, and wherever the cannon is, it's hitting. तो तोप जहां जाके वो गिर रहा है, वो आपका पॉइंट हो रहा है. दैट इज द लिमिट. ये एक कस्टम था, दैट वाज यूज्ड एज अ कस्टम. ओके, एंड जनरली दिस थ्रो वाज अराउंड 12 nautical miles, and even today we have the territorial limit as 12 nautical miles only. So even this custom was incorporated later. And as we all know that with the passage of time, as the custom gets older and its usage is prevalent, it turns into a law. It gets the force of a law. Now we came up with the United Nations Convention on the Law of Sea, that is 1982. And it was adopted in the same year, and it has been signed by 167 states, and it also has an observer state. Now, with this point, I also want to put stress on one very important point. सिर्फ कन्वेंशन साइन कर देने से आप पार्टी नहीं हो जाते हैं. Okay, so you are not a party to a convention if you sign it. You have to ratify it. Okay, so the state has to ratify. Ratify का मतलब आप उस कन्वेंशन के बेसिस पे अपने स्टेट पे भी या तो कोई लॉ बना रहे हैं. यू आर एनफोर्सिंग इट विद इन योर स्टेट. ओके, सो इफ इंडिया इज ratifying it, it means either India is directly using that convention, or India is giving effect to that convention by creating its own act. Very popular example, the Patent Act, the acts that we have with respect to intellectual property. Okay, so these acts were created. Why? Because we were a party to the international conventions. So this is the UNCLOS. We ratified it, and even India has ratified it. We have an act which is called as the Maritime Zones Act. Okay,
So Maritime Zones Act is the act, that's an Indian act, which gives force to this convention, and we have also formulated our own rights and duties within that convention. So we have 320 articles, 18 parts, and very important part of this convention is the dispute settlement. So every convention, it also gives rise to its own dispute settlement mechanism, and even UNCLOS, it also has its dispute settlement body. So the third point clearly states there was an increased demand to explore the resources, and जैसे जैसे science and technology बढ़ता गया, there was this one area जिसके पीछे सारे countries भागने लगे. That was the deep sea bed mining. All the countries were running after it. We want to explore what's within, what's under the ocean. We want to, take out the resources. So that was the demand. See, basically an observer state, they are not implementing that convention. Maybe because they are not having their own statehood. Okay. So they are just acting as, as a watch. They are understanding the terms. Let's move the screen away from the shared application. Is the screen still coming? Happenings of the convention, and they don't implement it because they don't have their own statehood. So in the case of Palestine, they don't have their own statehood. उनको वो recognition नहीं दी गई है. The sovereign recognition given to a state, they have not been awarded. So increased deep sea bed mining. So very recent example you can see in the southern belt of our country, there are many areas जहाँ पे potential source of natural gas has been found, right? So natural gas, petroleum, it is also available within the coastal areas, and this is the reason why we needed a law to control and to act as an effective mechanism for these activities. So if you have to understand what is UNCLOS, it is an international agreement. It has established certain rules and guidelines as to how to use the oceans and the seas. And very important, the very reason is to conserve the marine resources and to secure the preservation and protection of the living beings. Now there's another point to it. Not all disputes of the sea is related to territory. Very important. जितने भी disputes आप देखो countries के बीच होते हैं, वो सिर्फ territory के लिए नहीं होते हैं, वो resources के लिए भी होते हैं. So there are countries, they fight for the sea resources like fish. So there are countries जो दूसरे resources के लिए भी fight करते हैं. For example, एक country और दो, like there are two countries, ठीक है, and उनके बीच से एक water body pass कर रही है. एक बहुत ही बढ़िया example है South China Sea, जिसके बारे में आज हम चर्चा भी करने वाले हैं. तो South China Sea को अगर आप world map में देखें, तो वो बहुत सारे coastal states के इर्द गिर्द है ना, बहुत सारे coastal states उसके इर्द गिर्द है. बीच में South China Sea है, थाईलैंड है, वियतनाम है, चाइना ऊपर है. तो आप देखिए एक ही वाटर बॉडी के सराउंडिंग में देयर आर सो मेनी कोस्टल स्टेट्स. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आर वी गोइंग टू फाइट फॉर द रिसोर्सेज? यू जस्ट कैन नॉट फाइट, राइट? देयर हैज टू बी अ चेक. इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी, इट एक्ट्स एज अ चेक. Then there's another point. The convention covers the ground covered by the Geneva Convention of 1958 and it also creates some new regimes. तो याद करिए हमने जो कॉन्फ्रेंस 1 में जो पॉइंट पढ़ा था, the 4 conventions of conference 1, वो conventions भी इसमें involved है. Along with that, कुछ नए points भी इसमें available हैं. Now some new topics such as exclusive economic zone.
तो it's very important, this EEZ, it is of very important relevance in the current time. You see the countries are getting into dispute. जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वो इसी डिस्प्यूट में आ रहे हैं. आप देखिए अरेबियन सी के बॉर्डर में यू विल फाइंड दैट एरिया ऑफ this there's this creek, it's called as a creek, it is contended between Pakistan and India. It's near the Arabian Sea belt from towards the Gujarat. Now Pakistan and India, they are contending again and again कि ये हिस्सा हमारा है. Pakistan is saying ये हिस्सा हमारा है. Now who will determine if Pakistan or India they take the matter to the United Nations, then it will be determined कि वो area किसको belong करता है. ठीक है. So there are some new provisions also. New provisions, Sir Creek. Thank you, Devang. Yes, I have maps. I have maps in this presentation also. You will understand with the help of maps the whole dispute also. So you can see the exclusive economic zone. Exclusive economic zone का मतलब क्या होता है कि वो जो एरिया है ना उसका बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. That area is full of resources. Now the Sir Creek area between which is disputed between Pakistan and India, it is extremely important with respect to energy. तो वहां पे बोला जा रहा है कि there is a potential source of natural gas and petroleum. So now that is also contended. It also lays down the territorial sea limit and it provides for a dispute settlement machinery which is called as the ITLOS, that is the International Tribunal for the Law of Sea. Now you can understand by this. This is the land. I hope this image is very clear. I'll explain, this window is not moving. Now this is the territorial sea limit. Please understand this. This is the territorial sea limit. That area जहां पे आपका land जो है ना, basically you called it, this is whole totally called as the continental shelf. But ये वो area होता है till the 12 nautical miles from the baseline. ठीक है. So we take this whole area as the territorial sea. इसके बाद वाला जो point है, again 12 plus 12, ये है आपका contiguous zone up to 12 miles. Okay, this is the contiguous zone. After this whole area of 200 nautical miles, this is the exclusive economic zone. And ये है high sea. ठीक है. तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है. This map is very important. If you count, like if you measure from the land to 12 nautical miles, this is the territorial sea. Very important. 12 nautical miles. Please याद रखना, हम कोई भी डिस्टेंस जब भी नाप रहे हैं हम बेस लाइन से नापते हैं. What is the baseline? The very start point from the coast. ठीक है. तो कोस्ट के हम पॉइंट से नाप रहे हैं. ठीक है. बेस लाइन, दैट वेरी लाइन जो आपका कोस्टल बेस है ना, आप कोई भी कोस्टल स्टेट में जाइए, आप देखिए एक समुद्र तट आता है जो आप बीच जिसे कहते हैं, है ना, बीच. एक पॉइंट आएगा जब आप चलते जाओगे फिर आपका समुद्र स्टार्ट हो जाएगा. वो पानी एक पॉइंट पे आके रहता है. This is the walkable area, then this is the water, and then you go through, like go till inside, then it is the sea. तो जिस पॉइंट पे आपका वो स्टॉप हो रहा है ना वाटर, that is actually considered as the baseline. ठीक है. एंड वहां से we are counting. तो आप देखिए लैंड के एरिया में you can see here it is starting from that very area जहां पे आप चल सकते हैं. ठीक है. And till 12 nautical miles it is the territorial sea. 12 plus 12 contiguous zone. ठीक है. तो जहां पे ये पहला पॉइंट स्टॉप हुआ 12, उसके बाद के और 12 में आप ऐड कर दो
then it is called as the contiguous zone. ठीक है, ये है contiguous zone. Then you have to understand exclusive economic zone up to 200 nautical miles from the baseline. तो baseline से आप ये पूरा देखो 200, ठीक है, baseline से पूरा 200, ये है आपका EEZ. और उसके बाद का जो एरिया है ना, ये हाई सी 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, ठीक है, ये वो एरिया है जहां पे आपको बड़े बड़े जहाज, वो जो टैंकर सब होते हैं ना जिसमें तेल वगैरह आता है, तो आपको इसी एरिया में मिलेगा, हाई सी. ठीक है, हाई सी के नीचे यू कैन सी डीप सी बेड. डीप सी बेड, थोड़ा ज्योग्राफी लगाओ, थोड़ा सा ज्योग्राफी लगाना है इसमें हम लोगों को. हाँ, टेरिटोरियल इज 12 फ्रॉम द बेस, कंटिगुअस इज अप टू 12. यहां से देखो, यहां से 12 कर दो और फिर 12 प्लस 12. ठीक है, EEZ में यू कैन क्लियरली सी द डॉटेड लाइन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन. बेस लाइन कहाँ है, ये रहा, यहां से पूरा यहां तक. ठीक है, तो इंक्लूड करता है दोनों को. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि थोड़ा ज्योग्राफी लगा हुआ. यू कैन सी हियर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ये मान लो लैंड है हमारा, ठीक है, बीच का. सो दिस इज द लैंड एंड यू विल स्ट्रेट वॉक एंड देन देयर विल बी अ पॉइंट जहां ये धंस जाएगा, थोड़ा नीचे चले जाएगा. ठीक है, सो देन इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन. सो देन दिस होल बेड विल गो इनसाइड एंड एक पॉइंट आएगा जहां पे वो नीचे पूरा फ्लैट एरिया रहेगा. तो यू मस्ट हैव सीन इट इन टाइटैनिक. टाइटैनिक में जहां जहाज डूब गया वो एरिया डीप सी बेड है. ठीक है, वो एकदम बीच में, नदी के, समुद्र के बीच में डीप सी बेड. वहां पे इट इज अराउंड 3 किलोमीटर्स 4 किलोमीटर्स डाउन एंड इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दैट इज व्हाई ऑल द कंट्रीज आर रनिंग बिहाइंड इट. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं एरिया में केबल तार जो होते हैं ना, वो सारे सी में ही लगते हैं. केबल वायर्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी वायर्स जो होते हैं ना, वो सारे आपके डीप सी, सॉरी, आपके मैरीटाइम एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया इन्हीं में बिछाया जाता है. ठीक है, तार जो होते हैं सारे. सो दैट इज व्हाई दिस होल एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सी आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन. तो वेयर इज योर बेस लाइन, इट इज हियर. सो बेस लाइन से आपका पूरा 200 किलोमीटर, सॉरी 200 नॉटिकल माइल्स, it will be your exclusive economic zone. ठीक है, exclusive economic zone, we will understand why exclusive economic zone is a separate topic. It is separate, we have to understand that also. ठीक है, so I hope ये map, ये जो diagram है आप सबको समझ में आ गया. then I will move forward with the individual points. Should I move ahead with this point? Okay. So there are these basic principles that have been, basic principles जो हमारे law of sea में adopt किए गए हैं. Those are the principles of high sea, territorial sea, contiguous zones and continental shelf. So now we will take up one principle and we will understand. So पहला point आता है आपका territorial area, जिसको हम आपका जो main continental shelf जो आपका area है वो क्या होता है. territorial sea को आप maritime belt भी बोलते हैं. 12 nautical miles जो coastal state के सबसे पास वाला एरिया है ना, 12 nautical mile का, वो होता है आपका territorial sea. ठीक है, so it is that part of the whole water body which is closest to the coastal state. तो आप कोई भी coastal state जाइए, you can go to, if you see the south states, southern states, आपको coastal guards मिल जाएंगे जो coast guard होते हैं. you will find their boats running, they are protecting that whole area.
यू कैन ऑल्सो फाइंड इट टूवर्ड्स द वेस्ट बंगाल वाला एरिया जहां पे आपका बांग्लादेश वाला बॉर्डर है. इस साइड में यू कैन फाइंड इट टूवर्ड्स महाराष्ट्र गोवा वाला जो बेल्ट आ गया, सदर्न वेस्टर्न, एंड वी हैव टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट के नीचे. तो वो इतना जो इलाका है ना, दिस होल वी ऑफ द इंडियन मैप, दैट इज द टेरिटोरियल एरिया. एंड वहां से 12 नॉटिकल माइल आप गिन लो, 12 नॉटिकल माइल हमारा टेरिटोरियल सी है. वो पूरा और पूरा इंडिया का ही है. ठीक है. इट इज एडजेसेंट टू द कोस्टल स्टेट, मतलब कोस्टल स्टेट से लग के है वो 12 नॉटिकल माइल. अब इसका मतलब क्या है, इस पे पूरा राइट जो है ना वो आपके इंडियन स्टेट को मिल जाएगा. ठीक है. तो इंडिया का जो आप देखो टेरिटोरियल सी है ना, उसमें इंडिया का ही राइट है. ठीक है. इंडिया हैज द राइट, उसका सोवरेनिटी है उसके ऊपर. ठीक है. उतने पूरे एरिया में. पर क्या इसका मतलब ये है कि बिकॉज मेरा ही सोवरेनिटी है तो किसी और को मैं वहां आने नहीं दूंगी? ऐसा नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सम अदर कंट्री शिप इज कमिंग, तो आप सबको आई थिंक ये मालूम ही होगा कि जितने भी जहाज आते हैं दे ऑलवेज हैव द फ्लैग ऑफ देयर कंट्री, है ना. तो हम जब भी मैरीटाइम लॉ में ना हम हमेशा उन फ्लैग से ही बात करते हैं कि कौन से कंट्री का फ्लैग लगा था. तो कोई दूसरे कंट्री का भी मान लीजिए यू नो शिप इज कमिंग, इट विल एंटर इन आवर टेरिटोरियल वाटर्स, है कि नहीं. हमारे टेरिटोरियल वाटर में एंटर करेंगे. हमारे कितने सारे पोर्ट्स हैं, इन ऑल दोस पोर्ट्स द शिप्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर कमिंग. सो दे कम विद देयर ओन फ्लैग, उनका अपना एक फ्लैग होता है. सो इवन दे हैव द राइट टू एंटर, हम किसी को ऐसे रोक नहीं सकते हैं. ठीक है. सो इवन द अदर स्टेट्स दे एंजॉय द राइट, यस, फॉर इंपोर्ट पर्पसेस. तो उनको राइट है ये. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर सिचुएशन में राइट दे दोगे. सो फॉर एग्जाम्पल सम इलीगल थिंग्स आर बीइंग डन. ठीक है. जिस ये स्पेयर पैसेज है, करेक्ट अर्पित. तो मान लीजिए कोई इलीगल काम हो रहा है, इलीगल काम को हम इसमें बोल सकते हैं पायरेसी. ठीक है. सो पायरेसी हुआ, यू नो, कमिटिंग वॉर्स, कमिटिंग क्राइम्स ऑन द शिप. तो जो लुटेरा जिसे बोलता है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, आई थिंक आप सबने देखा ही होगा. तो जो लुटेरे होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, इट इज अ क्रिमिनल एक्शन. ओके. वैसे लोगों को राइट्स नहीं दिया जाता है. सो आपका पर्पस सही होना चाहिए. आप किसी भी स्टेट के पीस और सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं. सो इफ द स्टेट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द पीस एंड सिक्योरिटी, उसे राइट टू पैसेज मिलेगा, वो अंदर आ सकता है. ठीक है. सो दिस इज द टेरिटोरियल सी, 12 नॉटिकल माइल्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम दो पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे. वी हैव टू अंडरस्टैंड विद पर्सपेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन एंड ऑल्सो इंडियन लॉ. तो आप दोनों प्रोविजंस याद रखना कि हमारे कन्वेंशन में क्या दिया है यूनाइटेड नेशंस का, और हमारे इंडियन लॉ में भी क्या दिया है. So you can see what is the breadth of the territorial sea, 12 nautical miles from the baseline. आर्टिकल 15 जो आपका है यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है, यहाँ पे बोलता है कि मान लीजिए कोई एक वाटर बॉडी है एंड दो अलग अलग कोस्टल स्टेट्स उसके आसपास हैं. ठीक है. अब दोनों को राइट्स मिलने चाहिए. ठीक है. तो दोनों को राइट्स मिलने चाहिए. तो वो क्या करेंगे, एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे ना जो दोनों शोर से इक्वल हो. ठीक है. तो मान लो यहाँ एक शोर है, यहाँ एक शोर है. शोर, SHORE. ठीक है. शोर्स, कोस्टल शोर्स, 2 कोस्टल शोर्स आर देयर. सो आई विल सी यहां से कौन सा लाइन जा रहा है, यहां से कौन सा लाइन जा रहा है. जहां पे मिलेगा
वो एक इक्वी डिस्टेंट पॉइंट बन जाएगा। इक्वी डिस्टेंट, थोड़ा ज्योमेट्री है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा इक्वी डिस्टेंट हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो बाउंड्री डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो जोग्राफर्स जो होते हैं ना वो बाउंड्री डिटरमाइन करते हैं। सो दे विल डिटरमाइन कौन सा लैटिट्यूड कौन सा लॉन्गिट्यूड में जाके मिल रहा है, वो हमारा पॉइंट बनेगा। और दोनों कंट्री को राइट मिलेगा वहां पे अपना अपना राइट्स प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। अब इंडिया का लॉ क्या बोलता है, आप देखिए, जब भी हम कोई भी लॉ को अप्लाई करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, सो इट हैज द फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 297 है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स की हाउ वी कैन डिटरमाइन अवर टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स। तो हमारा एक मैरीटाइम जोन्स एक्ट है, ठीक है। सो मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976, ये जो एक्ट है इसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट कंसिडर किया गया है। मतलब इंडिया का लॉ भी सिमिलर बात बोल रहा है। सो नाउ व्हाट डज इट मीन, इंडिया कैन एक्सरसाइज इट्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी। सिर्फ पानी में नहीं, पानी के ऊपर जो हवा है वो भी मेरा है, पानी के नीचे जो मिट्टी है वो भी मेरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है। सी बेड, सबसॉइल, एयर। तो आपने सुना होगा कि हम बहुत सारे फ्लाइट्स को पाकिस्तान के ऊपर से लेके नहीं जाते, है ना। तो ये एयर स्पेस का भी एक अलग चल रहा है सीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके कंट्री के ऊपर का जो एयर है ना वो भी आपका ही डोमेन, दैट इज योर डोमेन, ठीक है। इट इज ऑल्सो योर टेरिटरी। तो कल तक हम टेरिटरी सिर्फ लैंड को मानते थे, बट नाउ इट इज नॉट लैंड, इट इज एयर टेरिटरी, इट इज वाटर टेरिटरी। एंड वाटर के नीचे वाला सी बेड, सब सॉइल, वो भी सब हमारा है। 12 nautical miles. And the last point, foreign ships have the right to innocent passage. Innocent passage का मतलब आप समझिए, if it is not violating the peace and security of the other state, ठीक है। कोई भी आपका वेसल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वेसल, VESSEL, आप हमेशा टर्मिनोलॉजी पे बहुत गौर करिएगा। हर लॉ का अलग अलग टर्म्स होता है। सी के बाद जब हम सी लॉ का बात करते हैं ना, आपका मराइन, व्हेन वी टॉक अबाउट द मैरीटाइम, इट इज वेसल, एनी काइंड ऑफ द शिप और एनी काइंड ऑफ टैंकर, इट इज कॉल्ड एज अ वेसल। तो आप देखो, फॉरेन वेसल्स जो आपके हैं उनका पैसेज इनोसेंट होगा अगर वे आपके पीस और सिक्योरिटी को हैम्पर नहीं कर रहे हैं। नाउ कंटिगुअस जोन, ठीक है। कंटिगुअस जोन का मतलब होता है 12 तो हो गया बेस लाइन से, उसके बाद वाला 12, ठीक है। तो 12 माइल्स बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी के बाद और 12, मतलब बेस से 24। कौन से प्रोविजन में दिया है? आर्टिकल 33, ठीक है। आर्टिकल 33 ऑफ द कन्वेंशन, और इंडिया के लॉ में सेक्शन 5। प्लीज रिमेंबर 24 नॉटिकल माइल्स। अब ये होता क्या है, व्हाट इज दिस जोन? इस जोन में आप अपनी सोवरेनिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मतलब मैं इसको अपना नहीं बोल सकती हूँ, पर अगर वहां पे कुछ भी इशू होता है, कुछ भी मैटर होता है, तो मैं वहां पे अपनी जुरिस्डिक्शन लेके जा सकती हूँ, ठीक है। आई कैन टेक माई जुरिस्डिक्शन ओवर देयर। तो मान लीजिए इंडिया का 12 नॉटिकल माइल है, उसके बाद जो आपका कंटिगुअस जोन है, ठीक है, 12 जो और है, उस एरिया में मान लीजिए कुछ क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है। तो सवाल आएगा कि जुरिस्डिक्शन कौन लेगा। मान लीजिए वहां पे कुछ इंडियंस को मारा गया है, तो इंडिया वहां पे इंटरवीन कर सकता है, वो अपनी पुलिस वहां लेके जा सकता है। आप देखो कोस्ट गार्ड वाले लोग वहां जाएंगे, वो लोग छानबीन करेंगे, देखेंगे, एंड रेवेन्यू भी लग सकता है। रेवेन्यू मतलब मान लीजिए आपको उस एरिया में कोई कुछ काउंटरफीट मतलब नकली करेंसीज मिले हैं, या इट कैन बी एनी फाइनेंशियल क्राइम। All those laws can be applied in the contiguous zone. Okay.
Now what is the continental shelf? It is a geographical feature, ठीक है। तो आप देखो आपका जो शेल्फ होता है ना, जब भी हम वाटर बॉडी की बात करते हैं, सो देयर इज द शेल्फ, वो जो पूरा लैंड है ना जिसपे आप चल के जा रहे हो, वो एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अर्थ का क्रस्ट है ना, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका। फिर वो आगे आप बढ़ोगे, वो पानी से कवर हो जाएगा पूरा। सो दैट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ टिल अ डेप्थ, एक डेप्थ तक आपका वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है। इट इज स्ट्रेट एंड देन इट डाइव्स। तो ये वो सबमर्ज्ड एरिया है सी का, ठीक है। एंड वहां पे आपको लैंड मास भी मिलेगा और आपको सबमर्ज्ड पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो जो लैंड मास है जिसपे आप वॉक कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द लैंड मास। एंड देन वी हैव द सबमर्ज्ड लैंड मास ऑल्सो। सबमर्ज्ड मतलब पानी से डूबा हुआ। इसका डेप्थ कितना होता है? 200 मीटर्स। तो अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर्स तक का डेप्थ होता है। एंड कोस्टल स्टेट्स जो होते हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे अपनी राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो राइट्स हैं ये लिमिटेड राइट्स हैं, ठीक है, लिमिटेड। अब लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड का मतलब होता है कि आप किसी और स्टेट के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप वो एरिया किसी और के साथ भी बांट रहे हैं, देयर इज अनदर स्टेट विच इज योर। देखिए कॉन्टिनेंटल लैंड जो है, कॉन्टिनेंटल, व्हेन आई से कॉन्टिनेंटल लैंड, इट बेसिकली मींस द क्रस्टल पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्रस्टल पार्ट, वो क्रस्टल पार्ट, ओके। तो क्रस्ट जो होता है ना आपका, ठीक है, देखो क्रस्ट जो होता है ना आपका, वो आपका दो टाइप का होता है। एक तो प्रॉपर लैंड क्रस्ट जो आपका प्लेन एरिया है जहां हम रहते हैं, और एक होता है आपका ओशनिक क्रस्ट, मतलब जहां पे ओशंस बहते हैं, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट जो है ना आपका, वो एक ही हिस्सा है, पर ओशनिक क्रस्ट में क्या है? पानी बह रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा ना जहां पे पानी खत्म हो जाएगा, फिर लैंड शुरू हो जाएगा, तो हम वहीं से वो पूरे एरिया को गिन रहे हैं। दैट इज द लैंड मास, कॉन्टिनेंटल लैंड मास। इट इज वन एंड द सेम थिंग, कॉन्टिनेंटल लैंड मास, ठीक है। तो इंडिया का आप साउथ वाला एरिया देखो, साउथ वाला एरिया, आप साउथ के तरफ चलोगे चलोगे चलोगे, एक पॉइंट आएगा, फिर बे ऑफ बंगाल आ जाएगा ना, फिर आप पानी में उतर जाओगे, तो वो पूरा इलाका क्या है? इट इज द कॉन्टिनेंटल लैंड मास। देयर इज द लैंड एंड देन देयर इज बे ऑफ बंगाल, सेम थिंग। आप इधर से चलोगे, फिर आपका अरेबियन सी आ जाएगा, तो वो बीच भी आ गया, उसमें पानी भी आ गया। यस यस, कॉन्टिनेंटल, देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपका एक सबमर्ज्ड पार्ट है ना। यू कैन सी द मैप अगेन, देखो इसमें आप देखो, एक तो लैंड है जो ऊपर है और फिर वो नीचे गिर गई है, तो वो पानी से ढकी हुई है। इट इज सबमर्ज्ड, दिस होल एरिया इज सबमर्ज्ड। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये पूरा है, ठीक है। गेटिंग इट? ओके, तो यही तो आपका टेरिटोरियल है ना। देखो आपका ये पार्ट जो सबमर्ज्ड है ये भी टेरिटोरियल में आता है, जो सबमर्ज्ड नहीं है ये भी टेरिटोरियल में आता है, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल सी है। ये काफी लंबा होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो आपकी होती है ना, ये काफी लंबा होता है। मैप में बड़ा छोटा सा लग रहा है, बट आप उतना चल के भी नहीं जा सकते, वो समुद्र में सबमर्ज्ड रहता है पूरा। हाँ, so you can explore natural resources, पर आपकी जो राइट्स है वो लिमिटेड रहती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उस एरिया को आप किसी और स्टेट के साथ बांट रहे हैं, तो आपको दूसरे स्टेट को भी राइट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आप किसी के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। Now this is very important. No one can undertake these activities, ठीक है, without the express consent of the coastal state. आपको coastal state की consent लेनी पड़ेगी, ठीक है। You have to take the consent. आप किसी के टेरिटरी को ऐसे ही infringe नहीं कर पाओगे. You cannot enter. And this is the reason why South China Sea dispute has happened, which we will understand at a later point of time.
नाउ आर्टिकल 76 जो आपका है ये बोलता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नाउ यू कैन सी, कंप्राइजेस ऑफ द सी बेड एंड द सब सॉइल। सी बेड एंड सब सॉइल मतलब वो जो जहां चल रहे थे वो भी, उसके नीचे वाला एरिया भी, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो आपका प्रिंसिपल है ये आया कहां से। सो देयर वाज अ केस ऑफ ट्यूनीशिया वर्सेस लीबिया, दीज आर टू कंट्रीज। इस कंट्री के एक केस में इट वाज फाइल्ड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, last paragraph of the previous slide. Under the Maritime Zones Act, India has proclaimed 200 nautical miles from the baseline as its continental shelf. ये वाला नहीं, कौन सा? ये वाला। So it extends to a depth of approximately 200 meters. Coastal states enjoy limited sovereign rights over this area for the purpose of exploring and exploiting its natural resources. I hope this is the paragraph you're saying. Okay. हाँ, so you can see here कि आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो पूरा एरिया है इट इज अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कोस्टल स्टेट है वो सोवरेन राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है, पर लिमिटेड सोवरेन राइट्स। लिमिटेड सोवरेन राइट्स मतलब मैं इसको कंप्लीटली अपना नहीं बोल सकती हूँ। आई कैन नॉट से इट इज माइन, ठीक है। यस, I cannot say it is mine. Why? Because there can be a point जहां पे ये और आगे जा सकता है, जहां पे कोई दूसरी कॉन्टिनेंटल लैंड हो, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी स्टेट हो। यू कैन सी द मैप ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री को आप देखो, एक ही एरिया में सारे कंट्रीज एक साथ लगे हुए हैं, सारे कंट्रीज पास पास में लगे हैं सारे, एक ही वाटर बॉडी को सारे कंट्रीज शेयर कर रहे हैं। दिस होल एरिया ऑफ लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिर आपका इधर मलेशिया, ब्रूनेई आ गया, आपका सुमात्रा, ये सारा जितना भी एरिया है। देन वी हैव दिस होल साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया, ऑल ऑफ देम आर शेयरिंग द सेम वाटर बॉडी, इजंट इट? सो वी हैव टू ऑल्सो सी कि क्या कोई दूसरे स्टेट का तो मैं राइट्स वायलेट नहीं कर रही हूँ। आई हैव टू सी दैट। Okay, that is why the right is limited. Geneva Convention says the shelf excludes the territorial sea. See, that is the difference. See, in the 1958 wala jo tha na, at that point of time we did not have the concept of EEZ, but now when we say na that this whole area we have also taken it under the exclusive economic zone, तो पहला 12 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया है ना, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, वहां से पूरा, वेट आई टेल यू द मैप। देखो ये जो एरिया है, ठीक है। सो अर्लियर वी डिड नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टिल देन वी वर जस्ट कंसिडरिंग दिस, ओके। But after we had this concept of exclusive economic zone, this whole area, we also started our limited rights, ठीक है। तो हमारे जो limited rights थी ना वो इस एरिया में भी आने लग गई। तो ये 12 nautical miles ही है। This whole is 12 nautical miles. Okay, Naman, can you please tell me which provision of the Geneva Convention of the Article 1? Just a second. The Geneva Convention of Territorial Sea and, okay, it defined the shelf to be the sea bed and the subsoil of the submarine area which is adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea.
तो टेरिटोरियल सी के बाहर वाला जो एरिया है, ठीक है, टू अ डेप्थ ऑफ 200 meters or beyond that limit to where the depth of super, okay, this definition I provided somewhere. Super adjacent, just a second, I have provided this definition somewhere. Ma'am, in the previous slide. This one. After Article 76 of UN. Yeah, here you have included the continental shelf comprises the seabed and subsoil. Second point. Yeah. The continental shelf of the coastal state comprises of the seabed and the subsoil of the submarine areas extending beyond its territorial sea. So it is, this is the continental shelf area. That is, of course, see, that is considering beyond the territorial sea wala jo area, that is the 12 nautical miles. Okay, वो जो 12 nautical miles वाला area है ना, उसके बाद वाला, ठीक है. So if you see the map, you can clearly see that a part of it is also submerged. No. You have to understand. See, this whole mass is divided. It's divided between two jurisdictions. This jurisdiction and this jurisdiction. Okay. When I say territorial sea, it includes the land and this submerged part. But after this, ये वाला जो पूरा point है ना, ये यहाँ से यहाँ वाला, getting it? ये यहाँ से जो यहाँ है, this is also the continental shelf. It's written here, the continental shelf. This area. And यहाँ पे ही आप जो exploitation है ना, जो आप resources निकालते हो, आप इसी bed से निकालते हो, इस continental shelf वाले bed से. तो आप देखिए ये कहाँ आ रहा है, कंटिगुअस जोन में आ रहा है. तो कंटिगुअस जोन में क्या आपकी प्योर सोवरेनिटी रहती है? नहीं रहती है. वहां लिमिटेड सोवरेनिटी रहती है कि नहीं? देयर इज ओनली लिमिटेड सोवरेनिटी. व्हाई? बिकॉज ए, इट इज अ कंटिगुअस जोन. बी, ये जोन शायद कोई और स्टेट का भी हो सकता है. एक लैंडमास आप समझिए, इसे सीधा है, ये सीधा जा रहा है. कंट्रीज ऐसे ऐसे लगे हैं. गेटिंग इट? एक ही लैंडमास में लाइन से कंट्रीज लगे हैं, तो उनका भी तो लैंड सेम ही हुआ ना. दे आर हैविंग द सेम लैंड. प्लीज ट्राई टू इमेजिन यू स्टैंडिंग ऑन अ बीच. अपने आप को एक बीच में खड़ा करो और फिर सोचो. बीच में खड़े हो जाओ, सोचो यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बीच. सो इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बीच, लुक टू द फ्रंट. आपको क्या दिखेगा? पानी दिखेगा. ठीक है, पानी दिखा. वहां से 12 नॉटिकल माइल्स आप चले, क्या है वो आपका टेरिटोरियल सी. ठीक है, तो वो टेरिटोरियल सी हो गया. नाउ लुक टू योर राइट, लुक टू योर लेफ्ट. आपको राइट और लेफ्ट में बीच का क्या दिखेगा? लैंड है ना. इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है. तो समझो, अगर ये लैंड पूरा दोनों तरफ से चल रहा है, तो इस कंट्री के बाद भी तो कोई और कंट्री है, और इस कंट्री के उस तरफ भी कोई कंट्री हो सकती है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं, मुझे बताओ. क्या ऐसे अगर हम चल रहे हैं, इधर एक कंट्री, उधर एक कंट्री है, पानी तो एक ही है ना. पानी एक ही है, सब एक ही पानी को शेयर कर रहे हैं. तो मैं 12 नॉटिकल माइल क्यों फिक्स की हूँ? 12 नॉटिकल माइल इसलिए फिक्स की हूँ ताकि हर स्टेट अपनी कंप्लीट सोवरेनिटी लगा सके. तो अगर मैं एक स्टेट हूं, मेरी इतनी होगी सोवरेनिटी, यहाँ लगा लो, यहाँ पे 2 आप बॉक्स, इसके अंदर का पानी मेरा है पूरा, इस डब्बे के बाहर दूसरे कंट्री का, इस डब्बे के बाहर दूसरे कंट्री का. लेकिन क्या आप समुद्र के नीचे का जो पूरा लैंड है, नीचे भी तो है ना, कुछ पत्थरे हैं, नीचे एक लैंड है, आप उसको क्या डिवाइड कर पाओगे? यू कैन नॉट डिवाइड इट. सो हाउ वी हैव डिवाइडेड इट? ऑन द बेसिस ऑफ सम टेरिटरी. हमने नाप लिया है कि जहां पे आपका टेरिटोरियल सी का जो नीचे का पॉइंट है ना, जहां खत्म होगा, वहां से वी विल टेक इट. देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को अगर मैं ज्योग्राफी में बोलूं ना, तो आपका ये पूरा एरिया है. बट व्हेन आई से मैरीटाइम में, ठीक है, कंसिडर इट एज द सबमर्ज्ड पार्ट. द सबमर्ज्ड पार्ट, ओके, सबमर्ज्ड पार्ट जो आपका आ गया ना कंटिगुअस जोन में, वो आ गया. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. So now you put it
here, defined as the zone around the continent extending from the low water line to the depth at which there is a marked increase of declivity to a greater depth. लैंड जहां गिरा उसके नीचे से जब और डेप्थ में जा रहे हैं वो है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पानी को आप सीधा देखो, एक पॉइंट आएगा, आप चलो 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 पानी में आप पूरा डूब जाओगे, फिर जो जमीन है ना वो नीचे धसक जाएगी, जमीन नीचे गिर जाएगी। वो जब नीचे गिरी ना जमीन, तो एक पॉइंट में वो जमीन गिरेगी, ऐसे गिरी 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 यहां तक गिरी, फिर यहां से और नीचे चलेगी, ये पॉइंट तक आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जहां तक वो सबमर्ज होके थोड़ा डेप्थ में आ गया है, ठीक है। दैट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। It is the submerged area. Please see the submerged area of the sea. Submerged area of the sea contiguous to a continental land mass. जो land mass था ना ऊपर उठा हुआ पूरा, जहां हम खड़े हैं बीच के ऊपर, उसके बाद का जितना भी एरिया है ना जो पानी में डूब रखा है, that is the continental shelf. Now did you understand the submerged area of the sea? पानी में डूबा हुआ, जहां से थोड़ा सा डेप्थ आ गया है, जहां से हम गिर रहे हैं। Did you understand? Please tell me, otherwise I'll explain it again. Yes. Of course, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से थोड़ा पीछे, सॉरी कंटिगुअस जोन से थोड़ा पीछे। अगेन वी विल गो टू द मैप, लेट्स गो टू द मैप अगेन। आप देखो ये आपका जो है ना ये वाला एरिया कंटिगुअस जोन में आ गया, ये ऑलमोस्ट थोड़ा पीछे होगा, थोड़ा सा 19-20 का फासला रहता है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका कंटिगुअस जोन कवर कर रहा है, ठीक है। ये लैंड देखो, एक पॉइंट आया यहां से, सॉरी यहां से देखो आपका एक गिरा और यहां से एक डेप्थ में आ गया। ये जो डेप्थ है ना, ये पूरा आपका जो डीप पॉइंट है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो इसके ऊपर का जो पूरा इलाका है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ये कंटिगुअस जोन है, ठीक है। दिस इज कंटिगुअस जोन। और हम लोग कंटिगुअस जोन में क्या पढ़े थे? फुल सोवरेनिटी नहीं होता है, फुल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, लिमिटेड। हाँ, सबमर्ज्ड एरिया, सबमर्ज्ड